وہ لڑکی لال قلندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ دریا دیس سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ یہ اشعار محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے لکھے گئے۔ ارادہ تو میرا یوں تھا کہ اپنی کچھ یادداشتیں کہوں آپ سے ویلاگ کے ذریعے محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے 27 دسمبر کو، لیکن اس دن کیفیت عجیب تھی، کیونکہ 27 دسمبر سن 2007 وہ دن تھا جس میں پاکستان کے ایک بہت بڑے روشن خیال طبقے کی امید بجھ گئی، اور وہ امید بجھنے کی وجہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت تھی، جو کہ راولپنڈی میں ہوئی۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یقین کیجئے اس دن واقعی میں ایسا محسوس ہوا کہ ملک میں سفوکیشن ہے، اور وہ سفوکیشن آج بھی فیل ہوتی ہے۔ وہ جو خلا ان کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ مجھے اتفاق رہا ہے پاکستان کے تمام بڑے لیڈر سے ملاقاتوں کا، اور کچھ ایسے لیڈرز جو کہ وزیر اعظم تو نہیں بن سکے لیکن اپنی جگہ پہ بڑے لیڈر تھے، ان سے بھی ملاقاتوں کا۔ کئی حضرات کو میں نے انٹرویو کیا، کئی کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، پریس کانفرنسز میں سوال کیے، اور میں شاید اس خوش قسمت جنریشن کا حصہ ہوں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کے اونچ نیچ بڑے قریب سے دیکھے۔ پہلے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے بچپن میں، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ لائف میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی واپسی، ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ، اور اس میں مارشاء اللہ کے نتیجے میں جو عوام پہ عذاب نازل ہوتا تھا اس کو بھی وٹنس کیا۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ 1989 میں انہیں پرائم منسٹر بنتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے دیکھا، پھر محترمہ کو بنتے ہوئے دیکھا، آصف زرداری کی جیل دیکھی، عمران خان کا عروج دیکھا، اور ان کی جیل بھی دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ میرے یا میرے سے اوپر والی جنریشن کے حصے میں یہ چیز آئی، اور اسی دوران جب گزشتہ 30 برس سے اوپر میرا صحافتی کیریئر ہو گیا، اس میں ان سب سے ملاقاتیں بھی رہی اور بات چیت بھی رہی اور گپ شپ کا موقع بھی ملا۔ اور ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنے بھی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں اس میں یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو کے پائے کا ایک بھی نہیں تھا۔ اس کو میں آنے والے چند واقعات آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ذاتی بھی ہیں اور سامنے ہم مشاہدہ بھی کیا ہے۔ مثلاً سب سے پہلی بات، جب تک محترمہ زندہ رہی اور پاکستان میں رہی اس وقت تک محترمہ تک ایکسیس جو ہے وہ بڑی آسان سی چیز تھی، یعنی اگر وہ کسی جگہ پہ موجود ہیں تو وہ کوشش کرتی تھیں کہ عوام الناس جو وہاں پہ ہیں ان سے رابطہ کریں۔ اور ہوا کچھ یوں کہ پہلے تو 1989 میں جب ان کی حکومت کو غلام اسحاق نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے برطرف کیا، تو اس کے بعد وہ لاہور میں اپنی ایک تحریک کے لیے ہی، اور یہاں پہ انہیں اجازت نہیں ملی کہیں بھی جلسہ کرنے کی۔ تو خوش قسمتی کہیے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہی ہماری ایک جگہ علامہ اقبال ٹاؤن میں تھی، وہاں پہ وہ جلسہ ہوا، کافی بڑا جلسہ تھا، اور اس کے سٹیج کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ اور جو میرے سینئرز تھے انہوں نے سنبھالی، اور اس میں جو ہے وہ بلکہ ہم نے سیکیورٹی گارڈز جو تھے ان کو بھی پیچھے کر دیا محترمہ کے کہ آپ پیچھے ہو جائیے، یعنی وہ اس وقت ایک، چونکہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کا دور تھا، یونین اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن وغیرہ بھی ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد 1992 میں جرنلزم میں آ گیا، اور 93 میں محترمہ دوبارہ وزیر اعظم بنی، اور اسی دوران یہ ہوا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ صدر لغاری سے جو ہے وہ انبن ہو گئی، اور اسی میں مرتضیٰ بھٹو کو شہید ہو گئے، اور ایک ان کی حکومت کے آخر میں ایک دن پتہ چلا کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ایک بام بلاسٹ ہو گیا ہے، اور میں چونکہ اور یہ وہ دن تھا کہ اگلے دن صبح عید الاضحیٰ تھی، اور ہم رپورٹر اسکیلیٹن سٹاف تھے، تو مجھے جونیئر رپورٹر ہونے کے باوجود کہا گیا کہ پرائم منسٹر میں ہاسپٹل میں
आ रही हैं, तो उन्हें आप कवर कीजिए जाके। यकीन कीजिए एक अजीब हू का आलम था मेरे हॉस्पिटल में। वो जो रूटीन प्रोटोकॉल होता था प्राइम मिनिस्टर का, वो बिल्कुल नहीं था। ऊपर 3-4 ज़ख्मी थे, मोहतरमा ने उनकी इयादत की, और इयादत करके जो ही वो वार्ड से बाहर आईं, तो आगे हम 2 या 3 सहाफ़ी खड़े थे। हमने रोक लिया उन्हें कोई गुफ्तगू के लिए। तो हम अभी गुफ्तगू शुरू ही कर रहे थे जब वार्ड से कोई 8-10 खवातीन निकली बाहर, जो किसी पेशेंट के साथ थी, और उन्होंने आके मोहतरमा को मिलना शुरू कर दिया, दुआएं देनी शुरू कर दी, और किसी ने अपना कुछ प्रॉब्लम बताया। तो कामरान लाशारी साहब डेप्यूटी कमिश्नर थे उन दिनों में लाहौर में, तो ये मोहतरमा की उनसे जो खवातीन आई उनसे मोहब्बत, या आवाम से मोहब्बत जिसे आप कहते हैं, उन्होंने लाशारी साहब से पूछा कि आपके पास कोई कैश है? तो लाशारी साहब कुछ लिफाफे लाए हुए थे जो उन्होंने जख्मियों को देने थे, वो दे दिए गए। वहाँ पे 4 थे, चूंकि कुछ लिफाफे बच गए तो उन्होंने मोहतरमा को लिफाफे पेश किए। गालिबन 10-10 हज़ार रुपया था 92 में, काफ़ी अच्छी अमाउंट थी। तो वो 10-10 हज़ार मोहतरमा ने उन खवातीन को दे दिया। उसके बावजूद मुझे याद है कि लिफाफे फिर भी कम पड़ गए, तो मोहतरमा ने जो है वो अपने पर्स से देखा, उनमें जो पैसे हैं वो बाकियों में बांट दिए। और वो खवातीन इतनी खुश थी उनसे मिलके कि प्राइम मिनिस्टर को रोक लिया, और उसी में ही हमने एक आध सवाल किया और उसका जवाब उन्होंने दिया और वापस चली गई। इसी तरह ही फिर लाहौर में जब वो कभी तशरीफ लाती हैं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मौका मिल जाता है, क्योंकि उस वक्त मैं बिजनेस रिपोर्टिंग कर रहा था, तो शाज़ुल नादिर ही कुछ इस तरह का वो सीन क्रिएट होता था। अलबत्ता जब मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग शुरू की, तो उस वक्त मोहतरमा से जो मेरी एक तारीखी मुलाकात, जो पहली बाकायदा जिसे आप कहते हैं, वो यूँ हुई कि पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद एक बना था और उसका सरबराही इजलास था, और मेरी रात को डॉक्टर तारुल कादरी साहब से बात हुई। मैंने कहा सुबह आप नवाज गवर्नमेंट के खिलाफ अनाउंस करेंगे, ये बात है 98 की, और सुबह तहरीक का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कोई तहरीक का आगाज़ नहीं होगा, क्योंकि तहरीक का वक्त नहीं है, और वैसे भी अगर हम कोई तहरीक चलाएंगे तो ये जरदारी बचाओ तहरीक होगी। मैंने उसमें एक सिचुएशनल लिख दिया, सिचुएशनल लाइक पॉलिटिकल एनालिसिस, और अगले दिन वो छपा। वो ज़रा थोड़ा-सा काफ़ी कहा जाता है, मैं अपना तो नहीं, वो मज़बूत लिखा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उसकी कवरेज के लिए पहुँचे, तो डॉक्टर तारुल कादरी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, जनरल असलम बेग, कबीर अली वास्ती और इस तरह के और लीडरान बैठे हुए थे, और डॉक्टर तारुल कादरी ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि जी हम फ़लाँ तारीख से फ़लाँ शहर में रैलीज़ निकाल रहे हैं, इसके साथ ही हमारी तहरीक का आगाज़ हो गया। तो जब उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट ख़त्म किया, तो मैंने हैंड रेज़ कर दिया। वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब के जो सारे सेक्रेटेरिएट के लोग थे, उनके सेक्रेटेरिएट में ये समिट थी, तो वहाँ पे वो जानते थे मुझे, उन्होंने माइक मुझे दे दिया। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, कल रात को आपकी मेरी बात हुई, और आपने कहा कि तहरीक का वक्त नहीं है, और वैसे भी ये तहरीक ज़रदारी बचाओ तहरीक होगी, तहरीक नहीं चलेगी, तो आज की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि आपने तहरीक अनाउंस कर दी? तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यानी उन्होंने मुझे कंट्राडिक्ट किया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उसमें हमारी थोड़ी सी डिबेट हो गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपका ये स्टेटमेंट मैं 4 दफ़े छाप चुका हूँ, एक दफ़े भी आपका डिनायल नहीं आया। खैर मोहतरमा ने गॉगल्स उतार के, अपनी ग्लासेस उतार के डॉक्टर तारुल कादरी साहब को देखा। फिर उन्होंने, पीछे खड़े हुए थे हुसैन हक्कानी और मुनीर अहमद खान, उन्हें इशारा किया। वो पूछा मुनीर खान साहब और हुसैन हक्कानी मेरे पास है, उन्होंने कहा मोहतरमा तुमसे मिलना चाहती हैं। तो जब वो ख़त्म हुआ तो वो मुझे ले गए। मोहतरमा ने नाम वाली नाम से वो मेरे वाकिफ़ थी, और फिर वो चलते 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 वो सीढ़ियाँ उतरे हम, और फिर उनकी गाड़ी के करीब खड़े होके काफ़ी बात हुई। उन्हें शिकवा था कि मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ बहुत होता है, तो मैंने उन्हें कहा कि मोहतरमा, आप मीडिया को इतने डिस्टेंस पे आपकी पार्टी ने रखा हुआ है, और मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, जो कि आज भी हमें नज़र आती है कि उस तरीके की नहीं है। यही वजह है कि बहुत सारे मीडिया के लोग जो हैं, वो या तो इनवाइटेड नहीं होते, और या फिर उनको बुलाया नहीं जाता, या कुछ चंद मनपसंद अफराद को साथ रखा जाता है। ये प्रॉब्लम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है। तो ये जब मैंने बातें की, तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगी, तो मुझे एक मीडिया प्लान बना के दो। अच्छा, मैंने आगे से हँसते हुए कहा कि मैडम शायद आप 1 हफ्ते बाद ना आएँ, बीबी आप 1 हफ्ते बाद ना आएँ। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरी खबर है कि आप बाहर जा रही हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि कोर्ट्स आपको कन्विक्ट करेंगे, जो कि बाद में सैफुर रहमान और वो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब की भी ऑडियो भी बाद में काफ़ी सालों बाद आई। तो मोहतरमा ने मुस्कुरा के देखा, ओह ओके, यू आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड।
बहरहाल विल स्टे इन टच। उसके बाद मोहतरमा अगले 1 डेढ़ हफ्ता में मुल्क से बाहर चलेंगी सेल्फ एग्जाइल में। दरमियान में फिर एक नया अखबार आया द सन 1999 में। उस पे मैंने मोहतरमा का एक ईमेल इंटरव्यू किया, जो कि अपने वक्त में शायद पहला ईमेल इंटरव्यू था पाकिस्तान में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो सन अखबार के सेकंड एडिशन में, यानी इनाग्रल के बाद वो शाया हुआ। उसके बाद इक्का दुक्का ईमेल्स हमारी हुई, लेकिन वक्त गुजरता गया। फिर दोबारा एक दफ़े मोहतरमा की तरफ से मुझे ईमेल आई। एक मैंने द फ्राइडे टाइम्स के लिए एक स्टोरी की थी 2001 में नवंबर में, और उसमें मैंने उसकी हेडलाइन आज भी मुझे याद है, फिर शौकत अजीज भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जबकि इलेक्शन हुए 2022 के बाद। तो उसमें मोहतरमा ने वो मुझे मेल की और कहा कि ये मैंने तुम्हारा आर्टिकल पूरी दुनिया में फैला दिया कि देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खबर थी जो ISI फार्मूला था अगले सेटअप का, जिसके नतीजे में किंग्स पार्टी बनी, आफ्ताब शेरपा वापस आए, ये सारा उस खबर में बताया गया था। तो है उसका नतीजा ये हुआ कि वो खबर तो मशहूर हो गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी जो है वो हॉट वाटर्स में मैं चला गया, लेकिन बहरहाल उसमें बचत हो गई। लेकिन जो आपको हैरान कुन बात बताने लगा हूँ, मोहतरमा जब वापस आई, कराची का सरवाइव किया उन्होंने अटैक, उसके बाद वो गई, फिर वापस आई, यहाँ पे नज़रबंद भी रही लतीफ़ कोसा के घर। बड़ी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से मुलाकात ना हो पाई। फिर वो एक दिन आई, शेख रफ़ीक साहब फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी ताज़ियत के लिए उनके घर। मैं उस वक्त एक इंग्लिश चैनल जियो इंग्लिश के नाम से आ रहा था, जो कि आ नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। उसके लिए काम कर रहा था, तो मेरे हाथ में जियो इंग्लिश का माइक, और मैं गया तो वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी टाइट, शेख साहब के घर के गेट के बाहर। बहरहाल शुक्र है वहाँ पे मुनव्वर अंजुम साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मोहतरमा शेख रफ़ीक साहब के ड्राइंग रूम से बाहर आ रही थी। ये वो लम्हा है जिसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये खातून आम इंसान नहीं। मोहतरमा ने मुझे देखा, मैंने देखा, मेरे ज़हन में ये है कि ये कहाँ, इतनी मुद्दत हो गई हम मुलाकात हुए। तो मैंने मोहतरमा से कहा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो मोहतरमा का अगला फिक्रा ये था, मुबशिर हाउ आर यू, जैसे वो बोलती थी। और जब उन्होंने कहा तो मुझे वो स्पाइन चिल हुई कि इनको अभी तक मेरा नाम याद है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके आ जाओ। और आज भी वो टीवी पे चलते हैं कि मेरे हाथ में ढेरों माइक हैं, चूंकि बाद में मीडिया के बहुत सारे लोग अंदर आ गए और मैं घुटनों के बल कोई 2 दर्जन माइक थामे बैठा हूँ और उनसे सवाल कर रहा हूँ। ये थी उनकी मेमोरी। और जो इंटरेक्शन हुआ, वो ईमेल्स पे हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, वो इंतहाई शानदार तरीके से वो मैनेज किया करती थी। और ये वो मैनेजमेंट थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से ट्रिकल डाउन होनी चाहिए थी पीपल्स पार्टी के निचले रैंक तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई। इसी तरह ही कासिम ज़िया साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उन्होंने एक दफ़े मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कई दफ़े वो इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, कहा कि फ़लाँ बंदा मेरी पंजाब ऑर्गेनाइजेशन में सही काम नहीं कर रहा, तो उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मोहतरमा ने कहा, कासिम ये वो उसको तो मैंने लगाया ही आपके कहने पे था। तो कासिम ने कहा, नहीं मैडम, मैंने कब, बीबी मैंने कब उसकी रिकमेंडेशन दी थी। कहा, नहीं नहीं कासिम, मुझे याद है कि आपने रिकमेंडेशन दी थी। तो उन्होंने, कासिम ज़िया ने डिनाई किया कि जी मैंने तो कभी भी इस बंदे की, उन्होंने कहा हैंग ऑन, और अपना लैपटॉप खोला। और 3 मिनट बाद वो ईमेल जिसमें कासिम ज़िया ने रिकमेंड किया हुआ था कि इस बंदे को लगाया जाए, वो सामने रख दी। और कासिम ज़िया वहाँ पे एकदम परेशान हुए कि उनके ज़हन में नहीं था कासिम ज़िया के कि उन्होंने ईमेल की थी। बहरहाल मेमोरी का ये आलम। और उसके बाद इसी तरह ही जब वो इंग्लैंड में आखिरी टिकट्स के लिए इंटरव्यू कर रही थी लोगों को इलेक्शन से पहले, उसके बाद उनकी शहादत हो गई और इलेक्शन भी थोड़ा डिले हो गए। उसमें एक दो नहीं, मैं 5-7 लोगों से मिला हूँ जिन्होंने यही कंफर्म किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बाय हार्ट उनके जहन में था कि उनके हल्के में जिसके लिए वो टिकट अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस रिजल्ट क्या था, किसने कितने वोट लिए थे। क्योंकि एक साहब ने उन्हें कह दिया, जी मेरे, मैं तकरीबन जो है मैं 12,000 वोट्स की लीड से जीता। तो मोहतरमा ने कहा, नहीं मेरा ख्याल है कि 12,000 वोट्स आपके नहीं थे, 12,000 से कम वोट थे। तो उसने कहा, नहीं मोहतरमा 12,000 वोट। उसने कहा, नहीं कम थे। तो फिर मोहतरमा ने वो अपने नोट्स खोले और बताया कि आपने 11,200 समथिंग वोट लिए
اس لیے 11,200 سم تھنگ ووٹ، بہرحال 12,000 ووٹ نہیں ہوتے، یہ انہوں نے سبق سکھایا کہ پرفیکشن کیا چیز ہوتی ہے۔ اور باقی کام کے معاملے میں جو ہے وہ انتھک خاتون تھی، اور اس میں ان کی تربیت کا عمل دخل تھا، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کام کے معاملے میں بہت انتھک آدمی تھے۔ سو ویلاگ کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یادداشتیں بہت ہیں، لیکن پھر کسی اور پروگرام میں آخر پھر مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، ان کی شہادت کے بعد ہی کسی نے لکھا تھا، آج وہ خاک بے نظیر ہوئی جس میں شامل لہو تمہارا ہے۔ تو واقعی میں وہ بے نظیر تھی، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ویکیوم ان کے آف سپرنگ میں بھی، اگرچہ ہمیں بلاول میں آصفہ میں وہ رمق نظر آتی ہے، لیکن اتنا بریلینٹ ہونا شاید ان کے لیے بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ اس بریلینس کے پیچھے ان کی ٹریننگ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو، اور ان کی لرننگ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ساتھ میں سخت حالات، جو پولیٹیکل ریزسٹنس انہوں نے دکھائی، وہ کوئی اور لیڈر پاکستان میں نہیں دکھا سکتا۔ آج کا پروگرام بس اتنا ہی۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔